ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಧರ್ಮಗುರು, ವಿಶ್ವಗುರು, ಜಗಜ್ಯೋತಿ, ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಎದೆ ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಲಿಂಗ ಆಯತ. ನನ್ನ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಬಳಗ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಈ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಶರಣರು ನನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗದವರು ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು ಬರೆದ ಅನುಭವದ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರ ವಚನ ಗ್ರಂಥ. ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಲಾಂಛನ ಈ ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯವೆಂದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರು ಅಂದಿನ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ದೇಹವೇ ದೇವಸ್ಥಾನವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ, ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸಿದ ಧರ್ಮ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ. ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಲಾಂಛನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವೆಂದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಟ್ಟದ ಕಸವನ್ನು, ಅಜ್ಞಾನದ ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೊಟ್ಟ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ತತ್ವದ ಮೂಲಕವೆಂದು ಹೇಳಲು ನಾನು ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದರೆ, ಬಹಳ ಸರಳ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಒಂದು ತತ್ವ ವಚನಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಲಾಖೆಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದು ಎನ್ನಬೇಕು. ಈ ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಎಂತು ಒಲಿವನಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನ
ಯಾವ ತಪಸ್ಯ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಈ ದೇಹವೆಂಬ ದೇಗುಲದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಿಲಿಂದ ಬದುಕಲು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು. ಈ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅರಿವೇ ಗುರು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ದೇಹವೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂದು ನಂಬಿ ಬದುಕಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಸಾಥ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. इंसान इस जबान से बात करते वक्त बहुत सोच समझकर बात करना चाहिए. वो बातें जरूरी बातें रहना चाहिए, काम के बातें रहना चाहिए. पूरे गांव की इनका उनका बात नहीं, सिर्फ काम की बात रहना चाहिए. वो बात कैसा रहना चाहिए? आगे का इंसान साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, उनको भी दर्द नहीं होना, हमारा अंदर का मालिक को भी दर्द नहीं होना, ऐसा बात करना चाहिए, बोलते हैं हमारे महात्मा बसवಣ್ಣ जी. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು. ಮುತ್ತಿನ हार बोले तो जो हीरा रहता ना, हीरा अगर धागा में अगर हीरा का मोतियाँ वो सब पहना दिए तो एक लाइन से दिखता है, वैसा हमारे शब्द एक लाइन से नरम बात रहना चाहिए, बोलते हैं हमारा महात्मा बसवಣ್ಣ जी. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು. जो शब्द आगे हम कितने भी बात करो, वो शब्द कैसा रहना चाहिए? जैसे कि हीरा मोती अंधेरे में रखे तो भी चमकता है, वैसा हमारे भाषा में चमक रहना चाहिए. चमक बोले तो किसी को दुख दर्द दिखाने का नहीं, वो बात हमारे लिए, आगे के इंसान के लिए, हमारा घर के लिए, गली के लोगों के लिए, देश के लिए, सब के लिए एक उदाहरण, एक मिसाल बनकर पूरे देश के लोग अच्छा बात करना सीखे. ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಲಾಖೆಯಂತಿರಬೇಕು. देखिए ये क्या है, बोलता है स्फटिकद सलाखे, मतलब मैं समझता हूँ अंदर से मालिक से चकअप होकर, अंदर एक बाहर एक नहीं, अंदर से जो सच्चाई है वो सीधा बाहर आना चाहिए और आगे वाला का, सुनने वालों को एक अच्छा काम के वास्ते रहना चाहिए, बोलते हैं महात्मा बसवಣ್ಣ. सलाखे अंतिरಬೇಕು. नुडिदरे लिंग मेच्ची. देखिए यही तो कन्फ्यूजन है हमारा देश के अंदर. भगवान 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 के नाम, बाहर के भगवान, मानव निर्मित लाखों करोड़ों भगवानों की है हमारा देश के अंदर, वो नहीं. महात्मा बसवಣ್ಣ का अनुभव मंटप के शरणों का भगवान कहाँ है? जहाँ पर जान है वहाँ पर भगवान है. सकल जीवात्मರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸುವುದೇ कुलजनों, बोलते हैं महात्मा बसवಣ್ಣ जी. सभी जीवराशियों के ऊपर भगवान को माने सो इतिहास बसव कल्याण का अनुभव मंटप का ये भूमि है. नुडिदरे लिंग मेच्ची बोले तो लिंग मतलब भगवान, ये छाती पे बांध लिए सो हमारा लिंगायत धर्म का लांछन है. ये लिंगायत धर्म के अंदर मानव निर्मित मूर्ति का पूजा करने का कथन नहीं है. कितना भी वचन पढ़ो, ये पूरे किताब में वही भी मिलता है. इस किताब में
कौन सा भी वचन पढ़ो, हर 2500 वचन है इस किताब में। हर कोई वचन क्या है, हमारा गलतियों को सुधार लो और अंदर का मालिक के साक्षी से जिंदगी करो, वही दिखाता है। बार बार हर वचन वही बोलता है। इस देश के अंदर जितने भी अज्ञान का जो कचरा भरा हुआ ना, वो पूरा कचरा को निकालने का काम करता है इस वचन। ये किताब 700 रुपये में मिलता है। 100 से ज़्यादा शरणों का वचन है। इस वचन को पढ़िए, समझिए, सोचिए, आचरण में लाइए और दूसरों को बोलते जाएंगे तो वही देशभक्ति होता है। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति सब बोल रहा ना, वो कुछ नहीं, पहले ईमानदारी का, सच्चाई का, ये शरीर ही मंदिर है समझकर चलने का ही देशभक्ति होता है, राष्ट्रभक्ति होता है, राष्ट्र प्रेम भी होता है। बसवण्णा का अनुभव मंटप का विचारों से मात्र होता है बोल के मैं बोलने को मैं हेम्मे पड़ता हूँ, खुश होता हूँ मैं। नुडिदरे लिंग मेच्ची अहुदु अहुदु एन्नबेकु। आगे का इंसान का अंदर का परमात्मा, हमारा अंदर का परमात्मा हमारे शब्दों को देखकर, उन्हें सुनकर आनंद होना चाहिए, खुश होना चाहिए। अगर ऐसा हर गांव में ऐसा विचार अनुभव मंडप स्थापने कर लेकर अगर करते जाएंगे ना, किसी को भी टेंशन नहीं होगा। मैं गारंटी लिख के देता हूँ, किसी को भी बीपी, शुगर, हार्ट अटैक रोग किसी हालत में नहीं होता। इसीलिए मैं बोलता हूँ, इस देश के अंदर जो कचरा फैल रहा है ना, जो अज्ञान का कचरा, इसीलिए कोरोना आया, वो आया, ये गुटखा तो हर गांव में मिल रहा, जहाँ बोले वहाँ थूक रहे। सरकार इसके ऊपर क्यों पाबंदी नहीं करता है? ऐसे जो बुरे काम हैं, थोड़ा थोड़ा करके गवर्नमेंट की तरफ से ये कचरा निकालना ज़रूरी है, क्योंकि हर लोग इंसान अंदर कचरा डाल ले रहा है, ये कचरा बाहर फेंक रहा है। इसीलिए स्वच्छ भारत बनाते हैं बोल रहा ना, स्वच्छ भारत कभी नहीं हो सकता। अगर स्वच्छ भारत बनाना है तो देश के अंदर जितने भी राजकारणी लोग हैं, जो धर्म की बातें करने वाले हैं, ये पूरे लोग इस किताब को पढ़े। 23 भाषा में एक किताब आया है, 23 भाषा में। इसका आचरण करे तो बिल्कुल हमारा भारत देश दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट बोलते हैं, हमारा बसवण्णा का अनुभव मंडप, इसके दरिया पूरे लोगों का जिंदगी एक अच्छा जिंदगी बना सकते हैं। और जब तक जिंदगी रहेंगे हम धरती पे, जब तक खुशी से रह सकते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ में। नुडिदरे लिंग मेच्ची अहुदु अहुदु ಎನ್ನಬೇಕು। ಈ ನುಡಿ ಒಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, लास्ट का पॉइंट देखो, ಈ ನುಡಿ ಒಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಎಂತೂ ಒಲಿವನಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ देवा। बहुत टीवी में पंचांग ज्योतिष्य बोलने वाले वो ये पूरे बहुत अच्छा बातें करते हैं, उनके बातों सुनकर पागल हो सकते हम। मतलब उतना अच्छा बातें करते हैं, लेकिन लोगों को गुलाम बना के रख लेते हैं लोग। अंदर से, बाहर से मीठा, अंदर से छुरी, ये बंद होना चाहिए देश के अंदर। हाँ, ये पूरे अज्ञान का जो लोगों को गुलाम बनाने के वास्ते काम कर रहा ना, ये पूरा उनका पूरा पोल इस किताब के अंदर है। उनका पूरा जो डुप्लीकेट काम कर रहा ना, ये वचनों की किताब के अंदर है। इसीलिए ನುಡಿ ಒಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಎಂತು ಒಲಿವನಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ संगम देवा। इसीलिए हमारा अंदर से एक, बाहर से एक, ऐसा जितने ज़्यादा हो रहा ना देश के अंदर, इसीलिए बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, बहुत सारे बीमारी आ रहा है और एक दूसरों का इंसान मिलजुल कर रहने को नहीं आ रहा है। ये सब निकाल कर सब लोग मिलजुल कर अच्छा रहने के वास्ते महात्मा बसवण्णा का ये वचन आप सबको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भारत देश के अंदर 140 करोड़ जनता को, सबको
अगर ऐसा विचार हम आचरण में लाकर लोगों को बोलते जाएंगे ना, तो मैं गारंटी बोलता हूँ सबका घर एक शिवालय हो सकता है, उनका आंगन ही वाराणसी हो सकता है। बोलते हुए मैं लास्ट में आपको सर झुकाकर शरण करता हूँ।